Good morning, everyone. Good morning, sir. Today we'll discuss the carboxylic acid derivatives and amines. To check from starting carboxylic acid, your basic work is just try to remember the names of acid in the formula. Methods of preparation. If you check first preparation from primary alcohols and aldehydes. Aldehydes oxidize to give what? Acid. Primary alcohol also oxidize to give what? Acid. Jones reagent or strong oxidizing agent. Already I've discussed all oxidizing agent. From alkyl benzene, if you take any alkyl benzene, any alkyl, any benzylic carbon having hydrogen, side chain क्या बन जाता है? Acid. And since the solution is basic medium, so that acid converted to what? Salt. तो फिर से आपको एसिडिफाई करना पड़ेगा. तो मतलब कोई भी बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल लेंगे, इथाइल ले लेंगे, मिथाइल ले लेंगे, प्रोपाइल ले लेंगे, और वही केमनोफोर ले लेंगे. इट विल गिव क्या देगा? दिस फाइनली KNO4 acidic or alkaline with chromic acid also. So what is chromic acid? H2CrO4. तो थर्ड इज वेरी सिंपल. साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? एसिड. साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से पहले क्या मिलता है? अमाइड. ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है. दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस. और दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. ठीक है. फ्रॉम Grignard reagent. Grignard में CO2 plus RMG ऑलरेडी डिस्कस. CO2 plus RMG में हेल्प क्या होती है कि if there are two carbon you will get and plus one carbon or three carbon from acyl halide and anhydride. Acyl halide anhydride everything will give one hydrolysis what? Acid. सारे एसिड डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देते हैं? एसिड देते हैं. फ्रॉम एस्टर्स. एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी क्या मिलेगा? एसिड ही मिलेगा, बिकॉज एस्टरिफिकेशन का अपोजिट क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. सारे एग्जांपल्स सेम ही है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं. सब पड़ा हुआ रिएक्शन था. प्रॉपर्टीज. लेट्स गो थ्रू द फिजिकल प्रॉपर्टीज. It forms a dimer due to intermolecular H bonding in aprotic solvent or non-polar solvent. ये सॉल्यूशंस में भी आएगा एग्जांपल अभी. Chemical reaction. Since it is having acidic hydrogen, it will give sodium metal test. Since it is having acidic hydrogen, it will react with sodium hydroxide. And since it is having acidic hydrogen stronger than H2CO3, yeah, stronger acid than H2CO3, it will give CO2 gas. सब बेसिक जीओसी है, ये भी थोड़ा देखिएगा. जीओसी एग्जांपल्स हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के.
reactions of anhydride acid, formation of anhydride. इथेनोइक एसिड लिया, हीट करोगे तो H2O निकल जाता है, तो IUPAC में सीखा था हमने. H plus heating with mineral acids such as H2SO4 or with P2O5 give corresponding anhydride. P2O5 और P4O10 क्या है? Dehydrating agent. तो H2O निकाल सकते हैं. So we can use P4O10 or directly you can heat also. Esterification, you know this already. अल्कोहल में पढ़ा है, तो फिर भी एक बार रिव्यू करिए. जो एसिड लिया मैंने, उस एसिड का एक ऑक्सीजन का लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, एक का लोकलाइज्ड है. तो ऊपर वाले पे नेगेटिव आएगा, नीचे वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा. टू टेक हाइब्रिड, delta negative will be present on the double bonded oxygen. So that will be more reactive, more basic, more donating. And both oxygen is what sp2 hybridized. So the H plus will be added to double bonded oxygen. OH plus बना. फिर उस पे किसका अटैक हो रहा है? अल्कोहल का. Alcohol is acting as a nucleophile. Acid, protonated acid is acting as a electrophile. तो protonated acid पे क्या रहना चाहिए? Withdrawing group. प्रोटोनेटेड एसिड पे क्या रहना चाहिए बताइए? विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और अल्कोहल अटैक कर रहा है. अगर मैं कुछ भी नहीं जानता, इतना जानूं कि डोनेटिंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन अल्कोहल एंड विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट शुड बी ऑन एसिड, तो रेट फास्टर होगी एस्टरिफिकेशन की. एस्टरिफिकेशन की रेट फास्टर होगी. इफ बोथ द अल्काइल, अल्कोहल का R और एसिड का R दोनों ही बल्की हो, तो रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज वही RDS है. व्हाट इज RDS? अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड एसिड इज RDS. फिर से टेट्राहाइड्रल इंटीग्रेट बना, जस्ट लाइक SN2TH. फिर प्रोटो IMP हुआ, फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर निकल जा रहा है और H2 निकल जा रहा है. अब इसी का रिवर्स चलेंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो जाएगा. सिंस इट इज व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस. H2O निकला, फिर फाइनली H प्लस जो ऐड किया था आपने वो निकाल दीजिए, RCOOR बन गया. तो जो H प्लस था वो क्या था? कैटलिस्ट था. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HCl गैस. हम वाटर नहीं ले सकते. वाटर लेंगे तो किधर शिफ्ट होगी रिएक्शन? बैकवर्ड. Because water is a byproduct of esterification. So we cannot take HCl aqueous or aqueous या dilute H2SO4. We have to take concentrated, where the water की concentration is what? Very less. तो एक बार आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा. अब सारे देखो रिएक्शन सब सिंपल सिंपल है. RCOH plus PCl5 क्या दे रहा है? RCOCl, similar to alcohol. RCOH plus PCl3 giving RCOCl, similar to alcohol. But best method is what? SOCl2 वाला. SOCl2 वाले में दो गैस प्रोडक्ट मिलते हैं. Formation of gaseous product will shift the reaction toward forward direction. Fourth reaction is very important. I will ask you to write it. Not difficult, but important is what कि पहले आपने नहीं किया होगा या पहले कराया हो तो मुझे ध्यान नहीं है. एसिड है, अमोनिया क्या होती है? बेस होती है. तो आपस में क्या हो गया? सॉल्ट बन गया, अमोनियम एसिड. वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बन गया. श्रेयस बताओ, व्हाट इज द पीएच फॉर्मूला ऑफ वीक बेस वीक एसिड सॉल्ट? हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक बेस वीक एसिड सॉल्ट. कोई भी बताइए. पीएच ऑफ वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट. वही एग्जांपल आ गया ना. एनीवन रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ पीएच? नो वन. बहुत बढ़िया है. श्रेयस तुम्हें भी याद नहीं है? तीर्थ 7 plus pk/2 minus pkb/2. तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो बोलने में? फटाक से बोलो. देखो कोई नहीं बोल रहा है तो. ओ श्योर नहीं है. सौर क्यों? अरे तुम बोलने की कोशिश तो किए. मैंने कुछ बहुत टफ न्यूमेरिकल दिया क्या थे इसको सॉल्व करने के लिए? मैंने पूछा करने के लिए क्लास में? नहीं. यार ऑलवेज आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चंस इन द क्लास so that it will remind you to go and revise the chapter time to time.
आई नेवर एक्सपेक्ट कि टफ क्वेश्चन करना आना, वो तो आपको आना ही चाहिए सब धीरे धीरे आपको, लेकिन पहले फंडामेंटल तो आना चाहिए। अमोनिया एसिड बना, उसको हीट करोगे तो वाटर निकल जाता है, अमाइड बन जाता है। लेकिन अमाइड में आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? साइनाइड। क्लियर है? अमाइड का भी H2O निकल जाएगा और बन जाएगा साइनाइड। रिएक्शन नोटबुक लिखिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। तो अमाइड बनाने का सबसे प्यारा मेथड यही है, एसिड से अमोनिया का रिएक्शन, फिर हीटिंग इफेक्ट। हो गया सर। हो गया बेटा? हाँ सर। बहुत सिंपल है, एसिड और अमोनिया का रिएक्शन, सॉल्ट, हीटिंग इफेक्ट अमाइड, अमाइड में फिर डिहाइड्रीन डाल दिए, साइनाइड बन गया। इसमें कार्बन नहीं बढ़े किसी भी स्टेप में, ठीक है? ये भी कैसे लिखने की कोशिश करिए, चलो जैसे थोड़ा समझ लीजिए। ये पूरा पुराना जीओसी है। व्हाट इज RnH2? अमाइन, लोन पे लोकलाइज। RCONH2 लोन पे डीलोकलाइज। RCONHCOR कितनी बार डीलोकलाइज? दो दो बार। लेफ्ट में भी कॉन्जुगेशन है, राइट में भी कॉन्जुगेशन है, तो इमाइड हो गया, तो उसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो अमाइन बेसिक, अमाइड न्यूट्रल, इमाइड क्या हो गया? एसिडिक इन नेचर। अब थैलिक एसिड में दो दो एसिड थे, अगर इसको आप डायरेक्टली हीट कर दो तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड बन जाएगा। अमोनिया के साथ हीट करो तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेंगे। फर्दर हीट करेंगे तो क्या बनेंगे? डायमाइड बनेंगे, तो नाम हो गया थैलामाइड। उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो जैसे लेफ्ट मोस्ट में क्या रिएक्शन है? थैलिक एसिड में हीट करने से H2O निकला, H2 इज अ मॉलिक्यूल, CONH2 को हीट करने से क्या निकला? अमोनिया निकला। अमोनिया अगेन इज अ मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल जो निकलना चाहेगा। एक तरफ एनहाइड्राइड बन रहा है, दूसरी तरफ क्या बन रहा है? थैलिमाइड बन रहा है। इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रेजेंट है? NH, और NH का दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। व्हाट इज CO? E1E2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -R -I। तो N का जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया? थैलिमाइड। प्लीज राइट दी होल रिएक्शन नोटबुक में।
हो गया सर। ठीक है डन। हाँ सर। और रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो एसिड क्या बन जाएगा, अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 लोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट द नेम ऑफ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन प्रेजेंस इन प्लेस ऑफ LiLH4 यू कैन टेक B2S6 आल्सो, जो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस रिएक्शंस। डी कार्बोक्सिलेशन हो चुका है। ओनली रिएक्शन जो पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट था वो हैलोजनेशन है, वो भी अल्फा हैलोजनेशन। अल्फा हैलोजनेशन, carboxylic acid having an alpha hydrogen are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha halocarboxylic acid. The reaction is known as Hell-Vollard-Zelensky reaction, HVZ reaction. तो रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, जैसे कीटोन में भी हमने अल्फा रिएक्शन किया था, यहाँ पे भी एसिड में कर रहा है। एसिड का अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया, X आ गया। X2 plus red phosphorus or PX3 will give you what, RCHX. राइट दिस रिएक्शन, हेडिंग डालिए HVZ रिएक्शन और रिएक्शन लिखिए सर, और कुछ मत लिखिए। ओनली रिएक्शन जो पूरे एसिड में थोड़ा नया लगेगा, और कुछ एक दो एग्जांपल्स हो सकते हैं। सिर्फ रिएक्शन लिखिएगा। हो गया सर। देखो रिएक्शन क्या है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तो पहले अगर आप फॉस्फोरस लेते हैं तो PX3 से पहले वो एसिड हेलाइड बन जाता है, टॉटोमरेंस कराएंगे तो इनॉल बनेगा, और इनॉल विल अटैक, इनॉल का मतलब अल्कीन, और अल्कीन में ऑलरेडी आपने ये रिएक्शन पढ़ा है। अल्कीन में अगर मैं हेलोजन ले लूं, इट विल फॉर्म व्हाट, साइक्लिक हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन जैसा कुछ बनेगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रिटर्न होगा, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH और X प्रेजेंट है, तो दिस O विल अटैक और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हेलोजन आ गया।
और फाइनली C डबल बॉन्ड O X बस, और फाइनली फिर H प्लस निकाल दीजिए तो बन गया। तो जो एसिड हैलाइड बना उसकी हाइड्रोलिसिस करा ली तो एसिड बन जाएगा। पर आपको क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे, मतलब ऐसा दो स्टेप में नहीं देंगे। X2 प्लस रेड पी डाल देंगे, मतलब समझ जाइए कि अल्फा हाइड्रोजन करनी है। विल डायरेक्टली राइट RCH2COH गिव RCHXCOH। मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट रिंग सर सब्स्टिट्यूशन। हाँ सर। अगर पीएक्सटी दिया है तो एसिड हलाइड बनाना है कि ये रिएक्शन करना है? PX3 नहीं देंगे, वो X2 प्लस पी देंगे। ओके। और PX3 देंगे तो X2 प्लस PX3 देंगे। X2 तो होना ही पड़ेगा, PX3 होगा तो X प्लस जनरेट नहीं होगी ना। हाँ तो X2 से H प्लस आने वाला है बेटा। X2 will split into what? X plus and minus. This will be the participant. पर ऐसा रहता नहीं है, पोलराइज फॉर्म में रहता है। यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा तो फिर ये बॉन्ड ओपन हो जाती है। X2 रहना बहुत जरूरी है, P तो बस उसको एक्टिवेट कर रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रिंग सब्स्टिट्यूशन मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज COH E1E2 माइनस R माइनस I, नाइट्रेशन होगा, कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। हेलोजनेशन होगी तो कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। लेकिन COH कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। CHO NO2 COH CN कीटोन, इन सब पे क्या नहीं होता, फिडल क्राफ्ट नहीं होता। तो एसिड बेंजोइक एसिड पे फिडल क्राफ्ट नहीं, बिकॉज विड्रॉइंग ग्रुप के, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में फिडल क्राफ्ट नहीं होता। और किसमें नहीं होता, फिनॉल में नहीं होता। और किसमें नहीं होता, एनिलीन। इतना तुम लोग याद रख ही सकते हैं। बट भाई अगर हेलोजन की बात कर लो तो फिडल क्राफ्ट हो सकता है, क्योंकि हेलोजन उतनी ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। एसिड की कहानी खत्म हो गई, यूजेस पढ़िए। पूरे एसिड के चैप्टर में दो रेन इंपॉर्टेंट है, नोट्स में देखेंगे तो अर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन जो हम पढ़ा चुके हैं आपको, और सेकंड HBZ रिएक्शन ओनली। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज टॉट टू यू, कुछ भी नहीं बचा है। क्लेसन कंडेंसेशन एस्टर का रिएक्शन था, करा चुके हैं ना। अल्फा हेलो एस्टर रिफॉर्मेट्स की करा चुके हैं, सब करा चुके हैं पहले, तब इतना टाइम लगा था कीटोन में। ये सब कोई चैप्टर काउंट ही नहीं होता, एटलीस्ट मेरी टीचिंग में। यूजेस पढ़ लीजिए। यूजेस इंट्रोडक्शन IUPAC नेमिंग कॉमन नेम इन NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। थैलिक एसिड, थैलामाइड, थैलीमाइड, ये सब नाम डाल देंगे, क्वेश्चन वही टफ हो जाएगी सिर्फ नाम से। देखिए अमाइंस, अमाइंस की प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, बेसिक प्रॉपर्टी सब तो बतानी नहीं है, लेकिन मैं सबको रिकमेंड करूंगा कॉमन नेम जरूर देखिए, टेबल 1.15.1 कॉमन नेम। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन देखिए, NO2 से क्या बनानी है, NH2। रिडक्शन करवा चुका हूँ नाइट्रो का भी। NO2 से क्या बन जाएगा, NH2, H2PD से, H2PD से और RNO2 लेंगे तब भी बन जाएगा। फ्रेश अमाइंस का एक और नोट शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बाय रिडक्शन ऑफ कंपाउंड्स दिए होंगे, जितने भी एग्जांपल्स होंगे सब एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में लिखो, हाँ सर। ठीक है। एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। NO2 SN प्लस HCl, मेटल प्लस एसिड क्या बन जाता है, NH2। वही आप यहाँ पे Zn प्लस NH4Cl लेंगे तो बनेगा NaOH, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइड, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइड।
Reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. So only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. तो Fe स्क्रैप ले लिया, HCl के साथ रिएक्शन कराया, FeCl2 बन गए, और FeCl2 हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बनता है? HCl गैस बनता है. तो फिर से दूसरा स्क्रैप ले लो, फिर से ऐसे रिएक्शन कराओ. तो दिस इज प्रीफर्ड मेथड. मेटल प्लस एसिड. मेटल प्लस एसिड हमेशा क्या देता है? नेसेंट हाइड्रोजन. मेटल प्लस एसिड क्या देता है? नेसेंट हाइड्रोजन, और वही रिड्यूस करने का काम करता है. तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइड कर चुके हैं. कौन सी रिएक्शन है ये? SN2 है ना, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइड. हाँ सर. अमोनिया इज न्यूट्रल बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. जो सॉल्ट बना, उस सॉल्ट में अगर हम NaOH डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? RNH2. NaOH कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस. RNH2 कैसा बेस है? वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेस व्हाट? वीक बेस फ्रॉम इट्स salt. Ammonolysis has a disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary, and tertiary amines, and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. because अमोनिया लेंगे तो RNH2 बनेगा, RNH2 फिर से अटैक कर देगा RH पे. तो उल्टा कर लो, एक्सेस क्या ले लो? अमोनिया को एक्सेस में ले लोगे तो 1 डिग्री अमाइन की क्वांटिटी काफी बढ़ जाएगी. रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल. साइनाइड के रिडक्शन से क्या बन रहा है? RCH2NH2. H2Ni यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट या NaHg plus C2H5. सोडियम अमलगम NaHg plus C2H5OH RCH2NH2. रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. अमाइड रिडक्शन से भी क्या मिल रहा है? RCH2NH2. आपको याद होगा, अगर मैं यहाँ पे NH2 ले लूँ, ये जो C डबल बॉन्ड O है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 10. अगर मैं रिंग में ले लूँ, जो C डबल बॉन्ड O है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 10. इमाइड ले लूँ, दोनों C डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में. तो अमाइड रिडक्शन से क्या मिल रहा है? तो देखा जाए तो रिडक्शन ही है, 4-5 मेथड लिख दिया. रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स ही नहीं, रिडक्शन ऑफ इमाइन. इसका रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? अमाइन ही मिलेगा. Rn2 प्लस, इसका रिडक्शन करो तो क्या मिलेगा? अमाइन ही मिलेगा. RNC, इसका रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? अमाइन मिलेगा, और NH पे क्या अटैच होगा? CH3 NC आइसोसाइन. सभी रिडक्शन है. सर वो सिर्फ किसका ये रिएक्शन रिडक्शन? पढ़ानी है. ओनली दिस रिएक्शन इज. हाँ बेटा बोलो. हाँ सर. 2 डिग्री आइसोसाइन. मिथाइल अमाइन आइसोसाइनाइड. कुछ नहीं, डबल बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन लग गए, है ना. तो RCN प्लस हमने क्या लिया? सोडियम अमलगम प्लस C2H5 लिया. इस रिएक्शन को कहते हैं मेंडियस रिएक्शन. अब वो देखा जाए, 4 मेथड था प्रिपरेशन का. उसमें सेकंड तो नॉर्मल था, SN2 बार बार हो रहा था. हॉफमैन का नाम क्या रिएक्शन का? हॉफमैन्स अमोनोलिसिस. SN2 रिमेनिंग नोट्स में सेकंड रिएक्शन है, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल.
गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गेब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड हमने प्रिपेयर कर लिया था। ओनली रिएक्शन जो अननोन है हमारे लिए पूरे चैप्टर में, थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड में NH है, एसिडिक है, ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एसिड बेस। N पे माइनस आया, N पे माइनस विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। अगर SN2 होगी तो RX क्या नहीं हो सकता? कांट बी व्हाट? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में SN2 होती है क्या? अराइल हैलाइड में SN2 होती है क्या? बताइए। नहीं। नहीं होती है। SN2 रिएक्शन हुआ, N माइनस विल अटैक ऑन दी R, ऐसा। NR बन गया और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा दी। और हाइड्रोलिसिस करना भी बड़ा आसान है। सिंपली क्या कर लो, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं। यहाँ पे दो तरफ से अमाइड है, यहाँ पे क्या करें? OH। यहाँ पे क्या कर ले? H। H यहाँ पे क्या कर ले? OH। तो बनेगा क्या? थैलिक एसिड बन जाएगा। तो साथ में क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनेगा। एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते इस मेथड से, पर ये सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम होने के कारण इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट में, थैलेट आयन। इसको नोटबुक में लिखिए, डाल दिए गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यहाँ सिंपली क्या लिखोगे? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कांट बी प्रिपेयर्ड। बस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, कांट बी प्रिपेयर्ड एज SN2 नॉट पॉसिबल ऑन अराइल हैलाइड। थोड़े अराइल हैलाइड बेंजीन पे X ले लिया। गेब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड का स्ट्रक्चर आपने जस्ट लिखा था, फटाफट लिखिए। सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन लिखिए, हेडिंग लिखिए, ऊपर जो कमेंट है वो लिख दीजिए और रिएक्शन लिखिए। और सब हर एक स्टेप, पहला एसिड बेस, सेकंड SN2, थर्ड हाइड्रोलिसिस। और नाम क्या लिखा है? एन अल्काइल थैलीमाइड। ओनली रिएक्शन रेयर्स जो इसमें मिसिंग था माइंस में, जो आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत है, पता नहीं क्या क्या रिएक्शन है, वो धीरे धीरे सब हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू और विद टाइम। पहले हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए। तो सॉल्यूशंस के बाद दो ही चैप्टर रिमेनिंग रहेंगे। केमिकल काइनेटिक्स रेस पढ़ा था कि नहीं क्लास में हमने? हाँ सर। पढ़ा था। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टार्ट नहीं हुआ है वो, पहले स्टार्ट होगा, नहीं तो मैं कराऊंगा, पहले स्टार्ट होगा वो। थर्मोडायनामिक्स भी बाकी है। दो चैप्टर भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, मेजर चैप्टर, बड़े चैप्टर हो जाएगा बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जल्दी खत्म हो जाएगी, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स भी कराएंगे बिकॉज में बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हैं। जल्दी हो जाएगा ये सब टॉपिक, तो थर्मो पढ़ेंगे अच्छे से। और आयनिक हमारा पढ़ा हुआ सबसे बड़ा टॉपिक तो वही हो गया, आयनिक पढ़ा हुआ तो इलेक्ट्रो बड़ा आसान है। डन हो गया सर? सब लोग का हो गया?
गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एक थैलीमाइड ले लिया, थैलीमाइड में बेस डाल दिया, एसिड बेस हो गए, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गई, कोई भी अनायन न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, जनरेट हो गया। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये पढ़ा है क्लास में? हाँ इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है? 2-3 रिएक्शन है जो नोट्स में होंगे। N3 मेथड बिल्कुल सेम, N माइनस N2 प्लस, N2 कैसा लिविंग ग्रुप है? गुड। N2 निकल जाएगा, N पे नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा? नाइट्रीन जैसा कुछ, याद है मेथड? अभी हॉफमैन ब्रोमाइड का मैकेनिज्म क्या था? व्हाई इट इज नेम एज हॉफमैन ब्रोमाइड? बनता क्या है? ये बनता है, फिर बेस डालने से क्या बन जाता है? RCO N माइनस Br। मेथड क्या थी कि Br निकलेगा साथ साथ, R माइग्रेट करेगा N पे और N का नेगेटिव ऐसे जाएगा, व्हाट विल फॉर्म? RC RN डबल बॉन्ड, माइग्रेटिंग ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। RDS इज व्हाट? माइग्रेटिंग वाला पार्ट, यही RDS है, जिसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगी फास्ट रिएक्शन शो कर लेगा। RC डबल बॉन्ड हो N माइनस, यहाँ भी सेम सिचुएशन होगा सुरेश, बताओ। N2 लिविंग ग्रुप है, R माइग्रेट करेंगे और N, तो ये जब यूज करोगे तो कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। वो दोनों अलग अलग क्या है सर? अगर मैं डायरेक्टली RCO NC यूज करूँ तो कर्टियस हो गया, स्मिथ हो गया RCOOH, एसिड प्लस HN3, क्या फॉर्म करेगा? Yes. और उसके बाद फर्दर रिएक्शन सेम है और सबका कॉपी पेस्ट मेथड है। क्या फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं? आइसोसाइनेट, यहाँ पे R भी हो सकता है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग अराइल भी हो सकता है, अराइल। तो आप एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, ये सब 1 डिग्री बनाने का मेथड है, एज वेल एज 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, सब बना सकते हैं, दोनों ही बना सकते हैं। बैलेंस कोफिशिएंट भी याद करने की कोशिश करिए, बैलेंस कोफिशिएंट भी याद करने की कोशिश करिए। और ये आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? अमाइन और ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे O, और CO2 विल रिएक्ट टू फॉर्म विद Na2CO3, तो CO2 बना, CO2 will react with what? NaOH। ये कराया श्रेयस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हाँ कराते हैं, और उसके साथ मैंने कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन बोल दिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक स्ट्रेंथ, अमाइंस का केमिकल रिएक्शन, डेफिनेटली बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है, भी लिखा हुआ है आपके नोट्स में ऑलरेडी। अल्काइलेशन, अमाइंस अंडरगो अल्काइलेशन, भाई कौन सा रिएक्शन? RX प्लस NH2 NH3 गिविंग व्हाट? RNH2, फिर RX give reacting with what? RNH2। असाइलेशन, असाइलेशन क्या था, ये भी कराया अच्छे से, असाइलेशन ऑफ अमाइन। अगर मैं RCOCl ले लूं और RNH2 ले लूं, क्या रिएक्शन हो जाएगी? SN2TH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? 10, N का लोन पर क्या हो गया? यही लोग। डीलोकलाइज, N का लोन पर डीलोकलाइज, वही बन गया यहाँ पे। सेम अगर RCOCl की जगह पे आप क्या ले लें? एनहाइड्राइड और प्लस अमाइन ले लें, तो Cl यहाँ पे क्या था? लिविंग ग्रुप। ORCOR क्या है? लिविंग ग्रुप। सेम यहाँ भी बन जाएगा, तो हैलाइड ले लो या एनहाइड्राइड ले लो, रिजल्ट क्या आएगी? सेम।
कार्बिलमन रिएक्शन, लर्न द रिएक्शन विद द बैलेंस कोफिशिएंट्स, सब कुछ। कार्बिलमन रिएक्शन किसके लिए था? टेस्ट फॉर एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। टेस्ट फॉर 1 डिग्री में। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अगर मैं एलिफैटिक अमाइन लेता हूँ तो डायजोनियम सॉल्ट बनते हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है एट ऑल टेम्परेचर, इट विल फाइनली गिव व्हाट? अल्कोहल, हम ये कर चुके हैं। बट एरोमेटिक अमाइन लोगे तो क्या बनेगा? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। उस पर मैंने कई सारे कराए थे रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पे, पूरा चार्ट ही बताया था। 6th रिएक्शन आपके लिए नया है। एक क्या रिएक्शन नया था? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो 6th नया है, और 6th बहुत ज्यादा आसान है। 6th देखिए सर क्या वो है? कार्बाइलमाइन वाला कहाँ किया था? कार्बिलमाइन, हेलो, हाँ कार्बिन के रिएक्शन में कर लो फटाक से एक बार। CaCl3 प्लस KOH प्रीमर टाइमर में यूज हुआ था। हाँ इससे बनता क्या है? कार्बी मतलब हाँ, अब शॉर्टकट देखो फटाक से, पहले मेथड से समझाऊंगा, शॉर्टकट देखो। 2 हाइड्रोजन 2 Cl, क्या बन जाएगा? RNC, आइसोसाइनाइड या कार्बिलमाइन। कार्बिलमाइन का दूसरा नाम क्या? आइसोसाइनाइड है। स्मेल फाउल होती है। इससे 1 डिग्री अमाइन दे सकता है, वो 2 हाइड्रोजन 2 Cl तभी निकल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और दो दो HCl जो बने, उसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? KOH। तो कितने KOH चाहिए? 3। एक यूज होगा कार्बिन बनाने में, 2 यूज होगा एसिड फिक्स करने में। इसलिए बड़े प्यार से बैलेंसिंग इक्वेशन भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ सर। अब मेथड कैसे होगा? अगर चाहे तो मैं आपको पूरा मैकेनिक लिख दूं, सब अब लिखने में कुछ बड़ी बात नहीं है। RNH2 के पास लोन पेयर, CCl2 इज डेफिशिएंट, ये अटैक होगा यहाँ पे। RNH H प्लस ऐसा फॉर्म होगा। फिर से C पे नेगेटिव, C पे लिविंग ग्रुप है कि नहीं बताओ? C पे नेगेटिव चार्ज और C पे लिविंग ग्रुप रहता है तो क्या बनता है? कार्बी कार्बन बनता है। तो मेथड में बार बार वही रिपीट होगा। तो अब जो Cl निकलेगा, इट विल टेक आउट व्हाट? H प्लस। क्या फॉर्म हो गया? RNH CCl बन गया। फिर लोन पे इसको देगा, फिर क्या फॉर्म होगा? माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर से कार्बिन, C पे नेगेटिव चार्ज, C पे लिविंग ग्रुप, फिर ये निकलेगा, और ये नेगेटिव किसको ले जाएगा? H को। क्या फॉर्म हो गया? कार्बिन। और फिर अब फाइनली क्या बना लेगा ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो रहेगा नहीं निकलने के लिए। मेथड क्लियर हुआ? हाँ सर। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, हेडिंग डालिए। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, और डालिए ब्रैकेट में हिंसबर्ग टेस्ट। आजकल हर टेस्ट में ही आ रहा है ये, इससे आसान रिएक्शन नहीं हो सकता। मुझे बताओ यहाँ पे क्या, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन लिखूं? रिएक्शन देख के क्या लग रहा है? ये COCl जैसा है? Cl लिविंग ग्रुप है, तो हाँ रिएक्शन किसके जैसा हो गया? SN2 SN2TH। SN2TH नहीं बोलेंगे, सिमिलर टू SN2TH, है ना? हाँ सर। तो बेसिकली Cl निकल गया। अटैक क्या होगा? ऐसा अटैक हुआ होगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, फिर रिटर्न हुआ होगा, Cl निकल गया होगा, यही हुआ होगा ना? फॉर्म हो गया। नाउ N का लोन पेयर कितनी बार डिलोक्लाइज बताइए? 2 बार तो उसकी हाइड्रोजन क्या हो गई? एसिड। एसिडिक हो गया। तो दिस हाइड्रोजन इज व्हाट? एसिडिक। अगर ये एसिडिक है तो बेस में डिसॉल्व हो जाएगा। बोलो। ये हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड, इसका नाम सल्फोनामाइड है।
is strongly acidic to presence of strong electron withdrawing of sulfonyl group, hence it is soluble in alkali. In the reaction with secondary amine, क्योंकि इसके बाद दो हाइड्रोजन थे ना, are you getting it? दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो Cl को लेके गया, एक रह गया, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर 2 डिग्री अमाइन ले लो तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएगा, HCl बन गया। अब N पे हाइड्रोजन है क्या श्रेयस? नहीं, तो बेस में डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो टेस्टिंग हो गई 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन की। और 3 डिग्री हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ही है क्या? नहीं है। तो ये रिएक्शन फर्दर होगा ही नहीं। तो 1 डिग्री अमाइन ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का नाम क्या है? ऐसा कहाँ कंपाउंड देखे थे बताओ, रिकॉल करो, ये कहाँ देखे थे? इसका नाम क्या है बताइए? टोसाइल। टोसाइल क्लोराइड। तो टोसाइल क्लोराइड में CH3 को हटा दो, नाम क्या है इसका? हिंसबर्ग रिएजेंट नाम है बेटा। कंपाउंड को बोलते हैं क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालिए, रिएक्शन विद 1 डिग्री अमाइन, रिएक्शन लिखिए, 2 डिग्री अमाइन, रिएक्शन लिखिए, और यहाँ डाल दीजिए डिसॉल्व इन OH माइनस। तो क्या बन जाएगा बताओ? यस, है ना, N पे माइनस, डिसॉल्व सॉल्ट बन जाएगा ना। रिएक्शन में 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन तो होगा बट कांट डिसॉल्व इन व्हाट? बेस। Since an N-dimethyl benzene sulfonamide does not contain hydrogen, it is not acidic, hence insoluble in alkali. Tertiary amine do not react with this. However, these days benzene sulfonyl chloride is replaced with phenolene sulfonyl chloride, मतलब टोसाइल क्लोराइड। आजकल लोग ये यूज कर लेते हैं for the distinction of primary, secondary and tertiary amine, and also separation for the primary, secondary and tertiary amine. हिंसबर्ग टेस्ट यूनिक टेस्ट है अमाइन के लिए। रिएक्शन देखिए,
सर हाँ बोलो। सर कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स में ना एक टर्म था फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसका क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स में फ्लेक्सिबिलिटी करके एक टर्म था। वो सेक्शन भेजना बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी तो नॉर्मल चीज, लेकिन तो जो सेक्शन से रिलेटेड उसको भेजना। हाँ भेजता। रिएक्शन हो गया सिद्धांत? हाँ हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट व्हाट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। याद कर लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हैं, तो बनता क्या है? एन अल्काइल। इथाइल मतलब इथाइल कहाँ से आया? इस पे अमाइन से आया। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड या बेंजीन सल्फोनिल अमाइड, दोनों चलता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सब करा चुके हैं। Br2 लोगे, चाहे वाटर के साथ लो और या नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, तीनों Br लग जाएंगे। पर हम चाहते हैं सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगे या सिर्फ पैरा पे लगे, तो NH2 का जो डोनेटिंग पावर है वो कम करना पड़ेगा। डोनेटिंग पावर कम करने का तरीका क्या है? अमाइड बन अमाइड में कन्वर्ट कर देना। अमाइड कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? साइलेशन। तो डोनेटिंग पावर कम हो गई इसकी, स्टिल इट इज ऑर्थो पैरा, तो बल्कि बल्ब हो गया तो मैक्सिमम क्या मिलेगा? यस। और फिर से अमाइड से मैं चाहता हूँ क्या मिल जाए? अमाइन और एसिड, तो क्या यूज कर लेंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोजन। सब करा चुका हूँ सर, बताओ। हाँ सर। ये पूरा करा चुका हूँ हाइड्रोलिसिस। पिछली बार देख लीजिए, अमाइन है ये, हाईली रिएक्टिव, बेंजीन काफी एक्टिवेटेड रहेगा, डोनेटिंग पावर ज्यादा है NH2 की। हमने क्या किया? उसको NCOCS में कन्वर्ट कर दिया। CH3CO ट्वाइस O और CH3COCl। क्या निकलेगा? ये Cl निकलेगा और EH निकलेगा। तो HCl निकलेगा। HCl को कंज्यूम करने के लिए हमने क्या लिया? pyridine, पावर शिफ्ट करने के लिए। तो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट acylation। तो रिएक्टिविटी कम हो गई तो मुझे पैरा मिल जाएगा। अब आपको टफ पार्ट क्या करना है? ये सब नाम याद करना है। एसिटाइलाइड, नाम बड़ा सिंपल है। आईयूपीसी चेक, आईयूपीसी को क्या होगा? एन पे फिनाइल है और ये इथेनामाइड है, तो एन फिनाइल इथेनामाइड आईयूपीएसी हो गया। दिस इज आईयूपीएसी। पर टफ करेंगे वो एसिटाइलाइड देखे। नाइट्रेशन करेंगे, एक का 51%, 47%, 2%। अब NH2 तो डोनेटिंग ग्रुप थे, पर NH2 डोनेटिंग ग्रुप था सॉल्यूशन, लेकिन NH2 अब बेसिक भी है और नाइट्रेशन में एसिड लेते हैं, तो H प्लस रिएक्ट कर जाएगा, इट विल फॉर्म एनिलीनियम आयन। अब NH3 प्लस क्या है? माइनस आई, मीडिया डायरेक्टर, तो हमें मेटाबॉट भी मिलते हैं। और NH2 क्या है? प्लस आर मोर देन माइनस आई, तो प्लस आर मोर देन माइनस आई है और माइनस आई शो कर रहा है, तो ऑर्थो पे जाना क्या होगा? मुश्किल होगा। परसेंटेज भी लोग पूछ चुके हैं टेस्ट में, मेंस के टेस्ट में। लेकिन हम चाहते हैं एक्सक्लूसिवली पैरा मिले, तो फिर से क्या कर लेंगे? उसकी डोनेटिंग पावर कम कर देंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी कम कर देंगे। बेसिक प्रॉपर्टी भी कम हो गई ना, अमाइंस आर बेसिक, अमाइड्स आर न्यूट्रल। फिर नाइट्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? पैरा पोजीशन पे। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइन फिर से मिल जाएगा। सल्फोनेशन, NH3 प्लस H2SO4 सॉल्ट बना, उसको फर्दर हीट किया 453 टू 473, तो SO3H पैरा पे लग गया। लेकिन SO3H का हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक। NH2 का हाइड्रोजन क्या है? सॉरी, NH2 का लोन पेयर क्या है? बेसिक। आपस में क्या हो जाएगा? IMP। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या दिख रहे हैं? कैटायन भी है, आयन भी है, तो ज्वेटर आयन कहते हैं। ज्वेटर आयन और डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन। लेकिन आप बोलोगे सर अमाइन में अगर हम ये ले लेते हैं और एसिड ले लेते हैं, तो इससे ज्वेटर आयन नहीं बनता। It will not form ज्वेटर आयन। This does not form ज्वेटर आयन, क्योंकि यहाँ सल्फो
SO3H है, SO3H इज व्हाट, मोर एसिडिक, उसका रिएक्शन थोड़ा रिलेटिवली फास्टर होगा। RSO3H is more acidic than what, RCOH। तो सल्फेनिलिक एसिड नथिंग बट, हमारे एनिलीन में SO3H लगा दीजिए, नाम हो गया सल्फेनिलिक एसिड। नाम से ही परेशान करेंगे आपको। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-कार्प रिएक्शन due to salt formation with aluminum chloride. The Lewis acid, which is used as a catalyst, due to this nitrogen of aniline acquires positive charge. फिडल-कार्प करने जाओगे तो एनिलीन लोगे, RX लोगे, ALX3 लोगे, एनहाइड्रस। तो ये N का लोन पेयर किस पर अटैक कर देगा, ALX3 पे, जैसे फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब बन क्या जाएगा, बस। और N पे प्लस का मतलब क्या हो गया, माइनस आई पे, और माइनस आई विड्रॉइंग हो गया। माइनस नहीं आई नहीं कहते, अगर N पे प्लस रहता है क्या कहते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग माइनस आई से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में नहीं होता, हाइड्रोजन भी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में फिडल-कार्प नहीं होते। डाइज़ोनियम सॉल्ट टेस्ट कर चुके हैं, सेंडमेयर रिएक्शन, CO2Cl2 HCl CO2 Br2, या CO2Cl2 को आप CuCl भी ले सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे CuBr होगा, CO2Cl2 ही। गाइटरमैन रिएक्शन, Cu plus HCl, Cu पाउडर, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड एंड HBF4। इसका क्या नाम था रिएक्शन का, बाल्ज सीमन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट बाय H, certain mild reducing agent like hypophosphorus acid, phosphinic acid, what is that, H3PO2 and ethanol। तो क्या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H3PO2 and ethanol, they are mild reducing agent and converts diazonium salt to what, benzene, ARH। अगर ये बेंजीन N2 plus Cl minus है, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। N2 को हटा के क्या लगा दिया, H लगा दिया। This reaction is also tough, HBF4 N2 plus BF4 minus, or this reaction involving रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप, क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। तो एंड इसका कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूज करोगे आप, ये वाला, और एन किस पर अटैक करेगा, कैसा रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो डायजोनियम कैटायन का N प्लस विल अटैच एट द पैरा पोजीशन, OH माइनस pH 9 to 11, H plus pH 5 to 7, ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ये स्लाइटली बेसिक मीडियम। क्योंकि जो कपलिंग होती है वो हाईली एक्टिवेटेड रिंग में होती है, तो OH माइनस लेंगे तो फिनॉल का H प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज फिनॉल, दिस इज एनिलीन। फिनॉल का H प्लस निकल जाएगा, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिनॉक्साइड विल गिव द रिएक्शन, फिनॉक्साइड इज एक्टिवेटेड रिंग। कलर भी याद रखनी पड़ेगी आपको, तो फिनॉल यूज करोगे, इसका नाम क्या है, एजो। तो दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया तो क्या नाम हो गया, एजो बेंजीन। और पैरा पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सी, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो इन कपलिंग रिएक्शन N डबल बॉन्ड N रिटेन रहता है, ऊपर जितने रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन N2 निकल जाता है।
डन है श्रेयस? सब करवा चुके हैं बेटा, कुछ भी नया नहीं है। ये याद करिए, ये पैराग्राफ। व्हाट इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड? बेंजीन पे N2 plus Cl minus. What is benzene diazonium fluoroborate? Benzene N2 plus BF4 minus। इसके दो रिएक्शन है। N2 BF4 minus में अगर आप हीट कर दें तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर N2 BF4 minus NaNO2 plus कॉपर डाल दो तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये पैराग्राफ पढ़ो। Benzene diazonium chloride is colorless crystalline solid. It is readily soluble in water and is stable in cold but reacts with water. Then fluoroborate is water insoluble and stable at room temperature. तो benzene diazonium fluoroborate रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, तो वाटर इनसॉल्युबल है। और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है, स्टेबल कोल्ड में होगा, और वाटर के साथ हीट करोगे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। वार्म कर लेंगे। पढ़ी पैराग्राफ? फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे बेटा, वो रिंग को हम लोग चेयर फॉर्म में रखते हैं ना। हाँ सर। तो चेयर फॉर्म में जब रखते हैं तो चेयर फॉर्म में ट्रांसपोजिशन है, वो भी आपका एनहाइड बना सकता है, वही लिखा है। अच्छा। इसमें क्या होता है? अपर अपर लोअर लोअर, ट्रांस अपर लोअर लोअर अपर, हाँ और दोनों ही आपस में गॉस कन्फर्मेशन पे होते हैं। सिस भी गॉस कन्फर्मेशन में, ट्रांस भी गॉस कन्फर्मेशन। सिर्फ जब एंटी होता है, जब दोनों ही एक्सियल पोजीशन पे एंटी होते हैं, सिर्फ उसी में एंटी कन्फर्मेशन पे होंगे, तो पॉसिबिलिटी है क्या, गॉस कन्फर्मेशन में भी रह सकता है। हाँ सर। ये भी डन हो गई। बुकलेट देखिए, बुकलेट आप लोगों ने किया है राइट? यस। हाँ सर। बुकलेट की थ्योरी रेफर करिएगा, बुकलेट की थ्योरी भी अच्छी है। बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे ध्यान देंगे आप, लास्ट में होगा। कुछ सेक्शन में भी शेयर करूंगा आपको। टेस्ट फॉर HCOH, ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। टेस्ट फॉर CH3COH, कलेक्शन है सब। लगता है कि बहुत हाई फाई रिएक्शन है, सब कलेक्शन है रिएक्शन के, जो हमने ऑल पहले पढ़ा था। CH2N2 क्या करता है? मिथिलीन इंसर्शन। तो ये एसिड है, ये क्या बन गया? मिथाइल एस्टर। हाँ, ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, F नहीं पढ़ाया है, वो डिस्कस कर दूंगा, कभी आएगा नहीं टेस्ट में, डिस्कस कर दूंगा। सिर्फ रिएक्शंस हैं, कोई गौर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में बताइए, 1 से 1 to 10 किया है आर्यन? सॉल्व किया आर्यन? कितने लोगों ने किया है बुकलेट? कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा, फ्राइडे डिस्कस कर लूंगा इसमें। एक
2। अपूर्वा एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया है। Yes, sir. गुड। फिर तुम्हारा हाँ 1 2 दोनों। तुम सब कर लेना 1 2 3 4 सब हाँ फ्राइडे तक, और अमाइंस भी कंप्लीट कर लेना। आप लोग अमाइंस का एक्सरसाइज 1 जो नहीं किए हैं और एसिड का एक्सरसाइज 1 दोनों करिएगा। टेस्ट में कौन सा डाउट बताओ? 6। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ईथर और अल्केन तो हटा सकते हैं, अल्कोहल और एसिड में देख सकते हैं। सर 6 1 तो 6 बोल दो। फिफ्थ का आंसर क्या दिया? फिफ्थ का पहले एसिड एसिड दिया, बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन का मोलर मास मॉलिक्यूलर ज्यादा है। एटॉमिक वेट क्या होगा, है ना? तुम दोनों का बी और सी में देखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, पोलैरिटी चेक कर लोगे। एसिड का ओ का लोन पर डिलोक्लाइज होगा तो भी प्लस आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना ज्यादा क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, मैलोनिक एसिड। मैलोनिक ही होना चाहिए। यस, क्या दिया बताओ इसका आंसर? मेलन। एक्सप्लेन करो फिर। वो छोटा साइज है तो हाइड्रोजन वेरी बॉन्डिंग। गुड। हाँ, तो अल्काइल वाला पार्ट क्या है? छोटा है उसमें, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट छोटा है तो ज्यादा पोलर हो गया। जैसे अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल क्या होती है वाटर में? सॉल्युबल। मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल दोनों वाटर में क्या होता है? सॉरी। करवाऊंगा आपको मैं सब 1 बाय 1, सारे फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ने के लिए बोलूंगा हर एक चैप्टर का, तो अभी तो चैप्टर तो कंप्लीट हो। लेकिन जैसे बड़ा अल्काइल बन जाएगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम हो जाएगी। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और बोलो बेटा। 34। अमाइन ऐड नहीं किया हो ना? नहीं, इसका ही हो गया 1 2 3। ब्लू लिटमस ना, FeCl3 सॉल्यूशन। थोड़ा वो ये तो नहीं होंगे दोनों, बल्कि ब्लू लिटमस टेस्ट और FeCl3 सॉल्यूशन। FeCl3 के साथ वो स्लोरी दोनों भी स्लोरी देते बुकलेट, हैं ना। दोनों देते हैं, दोनों देते हैं। वही यहाँ पे गड़बड़ी किया उन्होंने। उन्होंने यहाँ तक एफिशिएंसी दिया है। हाँ, ऐसे FeCl3 दिया ना, टेस्ट तो हाँ, दोनों ही देते हैं। वही कलर की बात कर सकते हैं, वहां पे पर्पल या वायलेट मिलता है, यहाँ पे रेड कलर मिलता है, इस तरह से बोल सकते हैं। अदरवाइज दोनों ही वाटर में डिसॉल्व होते हैं, दोनों ही एसिडिक होते हैं, दोनों का सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, दोनों ही लिटमस पेपर रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना? तो थोड़ी कंफ्यूजन तो है आंसर में। कैन बी डिस्टिंग्विश पूछा है तो हो सकता है मे बी कलर कैन बी द रीजन। टॉलरेंस ग्रेडिएंट इज नॉट रिड्यूस्ड बाय, है ना? पूरा पूरा एसिडिक। टेबल ही बना के दिया हुआ है बेटा आपको, हाँ, बहुत प्यारा फॉर्मेट में। which of the following will not undergo Hell-Bollard Zelensky reaction? क्या चेक करने है? अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट। और जो HBZ कराते हैं वो 1 स्टेप कराते हैं, लाइक हाइड्रोबोरेशन। अगर आपने एक अल्फा हाइड्रोजन रखा और रेड पी और X2 डाल दिया, स्मॉल क्वांटिटी में रेड पी डाल दिया, एक H रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन से। एक बार और कराओगे तो एक और रिप्लेस हो सकती है। देखिए प्रोपेनोइक एसिड इतना आसान है। Propanoic acid or its salt can be converted into alkane by red PHI। रेड PHI दुनिया का सबसे घटिया रिएजेंट है, सबको किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्केन। अल्केन में।
ये किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोपेन में। और डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या होगा? दिस कोलबे करोगे तो क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन एंड ब्यूटेन, है ना? नॉट फॉर्म्ड इन ऑल दिस रिएक्शंस। लीजिए, मीथेन। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। RCO Ag plus Br2, ये कौन सा रिएक्शन है? बोरोडाइन हंसविक। हंसडिक का रिएक्शन। इसमें रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का रिएक्टिविटी होता है। Br2 और Cl2 लेते हैं, तो अगर आप I2 ले लोगे तो क्या बोलते हैं? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर आप I2 ले लोगे बेटा, इट विल गिव RCOOR, एस्टर बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं बिन बॉन सिमोनिनी रिएक्शन, या सिमोनिनी याद रखिए। I2 ले लोगे तो नाम बदल गया, सिमोनिनी रिएक्शन। Cl2 Br2 लोगे तो क्या होगा? बोरोडाइन हंसडिक का रिएक्शन। रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और बताइए, 42। बोलो। 42। 42 among the following we undergo faster decarboxylation reaction। फास्टर तो बी हो जाएगा ना। 6 मेंबर साइक्लिक टीएस बनेंगे बीटा कीटो एसिड, कुछ नहीं चाहिए उसको। दूसरा लॉजिक, बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एसिड। एसिडिक। इसका कार्बोनायन बनाना क्या होगा? आसान। स्टेबल या आसान। और डीकार्बोक्सिलेशन में व्हाट इज आरडीएस? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, है ना? कार्बन जितना स्टेबल होगा, जितना स्टेबल किससे होगा? विड्रॉइंग ग्रुप से। स्ट्रॉन्गर कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स फास्टर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? बताओ तो कौन सा चैप्टर है? हाइड्रो। हाइड्रोकार्बन, जो 11th का चैप्टर है, एक चैप्टर। और बताओ सुरेश, कितना सर कर वो सकते हंसलिकर हमने किस में पढ़ा था? हो? अल्का हैलाइड, अल्का हैलाइड के नोट्स में। अभी पढ़ लो ना, पढ़ तो लिया फिर से। हाँ हाँ। उसमें रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, वाया फ्री रेडिकल। और बताइए, 46। एन अल्काइल साइनाइड हाँ। फॉर्म्स एन अमाइड। ये तो हो जाएगा बेटा। सी होना चाहिए। हाँ, सी। सी होना चाहिए। हाँ, क्या आंसर दिया? बी दिए। बी। हाँ हाँ, सी 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 सही है। पार्शियल एटलिसी वही करता है ना। हाँ। वो लोग तो स्टॉप नहीं कर पाएंगे रिएक्शन को। सब बच्चे वाला क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी दम नहीं किसी में। ठीक है, कंप्लीट कर लेना श्रेयस, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना? और सर एक ही है 57 वाला। हाँ, वो हम जानते थे, तभी तो तुमसे पूछ रहे थे। एसिटाइल हाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइल क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ। ये क्या दिक्कत है? दिस इज ऐड एसिटाइल क्लोराइड है, SN2TH कराओगे। बनानी क्या है मुझे? दिस, व्हाट इज दिस? न्यूक्लियोफाइल। कहाँ मिलेगा न्यूक्लियोफाइल मुझे? वो P2O5 से भी बनता है। P2O5 बेटा, देखो यही सब अब ये तुमने बचकाना गलती किया है। दिस इज बैड। जब आप दो एसिड लेंगे तब ना वाटर निकालेगा वो। ओके। P2O5 क्या करेगा? P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, नहीं समझे? हाँ। वो माइल बहुत बचकाना गलती किया तुमने। P2O5 क्या करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर निकालेगा ना। सिंपल। नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा, फिर से पूछेगा स्टार्टिंग। पूरा बुकलेट कंप्लीट कर लेना श्रेयस परसों तक। हाँ सर। सुन रहे हो?
पूरी बुकलेट अमाइंस की और एसिड की दोनों की हो जाएगा? हाँ हो हाँ हो हाँ। जाएगा, कुछ नहीं सब हो जाएगा, कुछ नहीं किसी में। कितना टाइम लगेगा एक्सरसाइज करने में? आधा घंटा? हाँ आधा घंटा से 40 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगा होगा। लोग कितना भी कह लें, उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। थ्री के लिए ज्यादा लग। क्या बेटा? हाँ थ्री थोड़ा लगेगा, हाँ, उसमें मल्टीपल चॉइस होता है, हाँ तो थोड़ा थोड़ा तब भी वो भी बकवास ही चलता है, कुछ नहीं। थोड़ा सा स्ट्रेच करो श्रेयस अपने आप को, और एमएस स्ट्रॉन्ग कंप्लीट करो बुकलेट के साथ साथ। हाँ सर। ठीक है, तो कभी बर्डन बहुत आ गई है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ। फिजिकल चल रहा है, ऑर्गेनिक के बुकलेट करने हैं, बर्डन है, उसको बर्डन की तरफ मत लीजिए। ऑर्गेनिक टाइम लेता ही नहीं है, नहीं लेता है टाइम। अब तुम कीटोन एल्डिहाइड पे ध्यान दो, ऑलमोस्ट 1 मंथ हमने पढ़ा होगा, उससे ज्यादा ही पढ़ा होगा। 1 मंथ नहीं, कौन 25 दिन तो पढ़ा होगा। इस 25 दिन क्या सॉल्विंग था आपके लिए? कुछ था सॉल्विंग? बार बार उसी को रिवाइज करना था, बार बार उसी को बार बार रिवाइज करना था। ठीक है चलिए। सर कल आना है? कल नहीं आना है, कल मत आइएगा बेटा, क्योंकि मैच नहीं करेगा टॉपिक। सर मैंने एक डाउट भेजा व्हाट्सएप पे। हाँ 1 मिनट बेटा। हाँ एक ही होगा ना ये? नहीं 0। जीरो क्यों होगा? हाँ उसका जीरो आता है, हाँ वो जीरो ही होगा, सॉरी सॉरी। टेस्ट वाला का जीरो, ना। हाँ 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 समझ गया। जीरो तुमने भेजा था श्रेयस, तुमने भेजा था। हाँ हमने मैंने सी डबल बॉन्ड पे ध्यान दिया। सी डबल बॉन्ड सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा, सी एच ओ सी एच थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आंसर। और सर मैंने एक और भेजा है, टेस्ट टेस्ट का हाँ एक है। हाँ। द reagent which can be used to distinguish acetophenone from benzophenone। एक वो आइडोफॉर्म वाला हो जाएगा, हाँ और वो डीएनपी वाला। डीएनपी क्यों होगा? डीएनपी दोनों में होंगे ना। मतलब कलर अलग अलग। डीएनपी इज characteristic reaction of ketone aldehyde। डीएनपी is the characteristic reaction of aldehyde in ketone। हाँ aqueous solution of NaSO3 same। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलिंग रिएजेंट सब किसके लिए होते हैं? एल्डिहाइड के लिए और अल्फा हाइड्रोक्सीकीटोन के लिए। ठीक है। हाँ, तो हेलो, डीएनपी दोनों देंगे इसलिए नहीं। हाँ नहीं होगा। चलिए बेटा। थैंक यू।